this will react with the acids, how this will react with the acid chlorides, how it reacts with the some other functional group, nucleophilic substitution. All these things we will study. So we have studied few reaction when you have seen when acids were reacting with the amines were forming. So I was saying that some tricks you need to follow, that water you remove from the acid and the amine, so you can form the amine. Hope my voice is clear, Aishwarya. If you are facing any problem, please let me know. In between, Yes, sir. there may be network issues. Okay, that's fine if you are able to hear. Yeah. Can you see my screen, Yes, sir. Aishwarya? Okay. Ask me if you are facing any, any difficulties or any doubts if you are having, or any network issues if you are facing, then please let me know. Okay. So today there may be network issues from my side also, because I have connected from my mobile. There is no signals in my lab. So in our lab. So that is the issue now. So whatever it is, let it be. Chemical reactions. Chemical reactions. So you have to study about the chemical reactions. The difference, the difference in electronegativity between nitrogen and hydrogen atoms, because nitrogen is withdrawing, we know nitrogen is withdrawing nature atoms, and the presence of lone pair of electrons. So nitrogen is having the lone pair of electrons, this we know. Okay, nitrogen is having the one lone pair of electron, and oxygen will have two lone pair of electrons. These things you should not never forget. Whenever you write the mechanisms, these lone pair of electrons only participate. So you have to show when you explaining the mechanism. So you have to take care of that one. It's not required always to show the lone pair of electrons on that one. So whenever it is required to show some mechanisms, something is happening. So for example, here it is mandatory to show, because mechanism here, this is the meaning of that lone pair of electron giving to the H plus, because H plus is the electrophile. So that's how it is the electron loving. So it is the electron nucleophile. It is nucleus it required. It requires electrons. So both will add together. So like that. So this is based upon depend upon how the lone pair of electrons is present, and the electronegativity nature of nitrogen. So all these matters in the chemical reactions. Lone pair of electrons on the nitrogen atom makes amines very reactive. So this is most important part. Very reactive in organic compounds. Due to the presence of lone pair of electrons on nitrogen atom, amines behaves as a nucleophiles. How they behaves as a nucleophile. Why? Because these are having the lone pair of electrons, so it is electron rich. So this can give easily to the any electrophile. किसको जरूरत है उसको देके उसके साथ compounds that will form. So that is the reason this will participate in the nucleophilic substitution. So we have seen in coordination chemistry also different type of ligands, didentate ligands, monodentate ligand. Why? Because these are the ligands. Because Lewis bases, because these are nucleophiles which we give the lone pair of electrons to the empty orbital. The same way, these are the behaves in the reactions also. The number of hydrogen atoms attached to nitrogen atom also decide the course of reaction of the amines. So how many number of hydrogens present, whether one hydrogen present or two alkyl groups present or three alkyl groups present, based upon that reactivity will depends. Because R groups what? Donating nature, methyl, ethyl, propyl, these groups. Okay, R is nothing but methyl group, ethyl group, propyl group, like that. So these are having the donating nature. Based upon that, the nature of this giving the lone pair of electron nature will be means changes. So if donating nature is there, so that will become more electron rich, and that will give the more easily the lone pair of electron. That means that basicity will increase, right? So that's all about the related to the basic characters of the amines. Therefore, primary, secondary, tertiary amines differ in many reactions. So that the nature of the reactions will differ in different ways that will have. Because primary amines will have separate a different type of chemical reactivity nature, then the secondary, then the tertiary, all will have different type of chemical reactivity nature. All based upon what? Based upon the lone pair of electron. Right? Now, basic character of amines. Basic character of the amines. Like ammonia, we know ammonia is a base. In fact, that is the inorganic base. So organic part when attached to the amine, so that will become the organic base. So this ammonia is different, amines are the different. Okay, amines means what? Which are attached to the alkyl groups or any carbon compounds. Amines are converted into their salts, because these are the base.
When they react with the acid, HX. Whenever you see X means what? So Cl, Br. So you should not get confused. That is the reason everywhere I come. Chlorine, chlorine, bromine. So that type of, you should not get confused. Whenever R is coming, that doesn't mean that anything you, this is some functional group. No, it's not functional group. What is this one? It is CH3 or C2H5. इसके मतलब ये माइनस नहीं है, ये किसी के साथ अटैच्ड है, किसके साथ? फॉर एग्जांपल इधर NH2 के साथ अटैच्ड है. सो व्हेनेवर यू सी दी इन दी बुक्स और वो OH के साथ, इसलिए दिस इज टर्मिनल. इसको अल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं. CH4 इज मीथेन. CH4 इज व्हाट? मीथेन. अगर तुम एक हाइड्रोजन निकालो तो क्या बनेगा? CH3. और इधर कुछ फंक्शनल ग्रुप, ये CH3 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मिथाइल. मिथाइल, ये कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, लाइक दैट. ये सब हम लोग अल्काइल ग्रुप के साथ सिंपल, सभी को एक जनरल, क्योंकि ऑल आई आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी नेचर, इसलिए हम लोग जनरली आर के साथ दिखा देते हैं. अगर एक ही टाइप का दिखा रहा है तो आर है. इसको डिफरेंट टाइप, फॉर एग्जांपल मिथाइल को अगर आपने आर के साथ दिखाया तो इथाइल को आप आर डैश, प्रोपाइल को मींस डिफरेंट डिफरेंट. That is not only ethyl, that can be propyl also, butyl also, anything different alkyl group you can show with the dash here. All these concepts we have studied in the 11th class. Still I am recollecting all these things. So still if you don't getting confused, please you should ask me, because everywhere you see all these things. Okay. So, and these are the donating groups. So what are the donating groups? What are the withdrawing groups? So what are the reagents for named reactions? If all these things is clear to you, where you have to break the positive charge, where you have to get the negative charge, if these only things in organic chemistry, where you have to remove the water, where you have to add the carbon-carbon bonds, if you understood all these concepts, so these are a little bit tricky. So सोचना है आपको, अगर कुछ रिएक्शन देख रहे हो, अच्छा क्या हो रहा है इसमें, क्यों हो रहा है, अच्छा नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, so like that. Okay, so why it is forming? This is the base, this is the acid. So when acid, this is the base and this is the acid. When base and acids gets react, we know that what form? Salts will form. Salts will form. In fact, addict salts that will form here. So basically what is happening here? Hydrogen is positive, X is negative. So nitrogen is giving lone pair of electrons to this one, to H plus. इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन को ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो कभी भी पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो ये पार्ट एज ए काउंटर आयन टाइप का आके रहेगा. सो salts, these are the salts basically. So now nitrogen is getting the positive charge on that one. The same way like aniline also. Aniline when react with the HCl, for example here X is Cl. Aniline when react with the HCl, salt will form. It is called the anilinium chloride. Anilinium chloride, NH3. Why? Because this H is adding to the NH2, right? Amine salts are soluble in water, but insoluble in organic solvents like ether. So what they're saying that these are the salts. We know salts are soluble in water because those are the hydrophilic. Hydrophilic means what? Water loving. So salts का मतलब क्या होता है? उसमें charges है. So that will be most soluble in nature. Salts will have, due to charges are present, solvation will be more. That will have good solubility. अगर पानी में soluble है salts, तो obviously in organic solvents that will not have soluble. That's what they are saying. Organic solvents like ether, alcohols, keto. Alcohols is polar, so in alcohols that can be soluble, but non-polar like alkyl halides, ethers, aldehydes, ketones, benzene. In those compounds that cannot be soluble. This reaction is the basis for the separation of amines from the non-basic organic compounds. So what is the meaning of here? If you have done one reaction, if you have done one reaction. So for example, just as an example, I have taken RC double bond NH. Okay, NH, this compound imine. I am having this imine. Okay, if I do hydrolysis, okay, 1 minute. Here I will take some another alkyl group. Okay, try to understand. Here this is the imine. So how usually we can prepare this one? RC double bond O is there, plus RNH2 is there. If you are having RNH2, so all these reactions you have to remove like that. RNH2 is there, for example. So you have to remove this one, oxygen and hydrogen. Oxygen and hydrogen.
सो 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो रहा है इधर, सो आप इसको एक हाइड्रोजन को निकाल दो क्योंकि 3 बॉन्ड से होना चाहिए ना, सो यू हैव टू रिमूव दिस वन RCON. So what compound you get basically here? So you have to remove whenever if you find C double bond O in one of the reactant, if you are having H2 or something, so उसको कुछ dehydrating agent like H2SO4, P2O5 ऐसे लग के, if you remove water, you can get the imine. So this all reactions we have seen in the aldehyde, ketones, carboxylic acids reactions में हम लोग देखा है, ठीक है. If 1 2 3 what happens here? Aldehyde. If I have taken aldehyde, ये सब आपको ध्यान रखने का, ठीक है. So RCH double one, this one I am having, for example. So what they are saying that I have done hydrolysis. So I have done hydrolysis. I have put the water. Now what it will happen now? It will form R hydrolysis means इस साइड एक ऑक्सीजन आ जाएगा हमें, इस साइड H2 आएगा, like that. So I will get here RCOH means starting reactants only I will get, जो जिससे हम लोग बनाया उसी को मिल जाएगा हमें RNH2. सो अभी रिएक्शन मीडियम में क्या रहेगा हमारा, रिएक्शन मीडियम, सो बोथ मिक्सचर वी विल गेट इन दी बोथ इन दी वन ऑफ द रिएक्शन मीडियम, क्योंकि सब प्रोडक्ट्स एक ही रिएक्शन मास में, एक ही टेस्ट ट्यूब में हमको दोनों मिल रहा है, लेकिन मुझे इसको सेपरेट करना है ये आराम से इजीली पानी के साथ, वो पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा है. ओके, ऑर्गेनिक पार्ट सेपरेट लेयर बन जाएगा, ये पानी है, ठीक है. अभी इसको क्या करना है, मुझे पानी में लाना है. दिस बोथ आर ऑर्गेनिक पार्ट्स है, सो ऑर्गेनिक पार्ट्स मतलब वो ऑर्गेनिक सेपरेट हो जाएगा, ठीक है. सो दोनों साथ साथ है. मुझे इसको पानी में लेकर आने के लिए एमीन को, अगर मैं इसको सॉल्ट से ऐड किया, HCl ऐड किया, फॉर एग्जांपल एसिड आई हैव एडेड टू दिस मिक्सचर, तो ये तो क्या है, aldehyde है विच इज नॉट द बेस और समथिंग एसिड, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन ये बेस है. सो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट्स बन जाएगा हमें RNH3 प्लस Cl माइनस. वो सॉल्ट्स बनने की वजह से वो पानी में आ जाएगा हमें. सो पानी में आ गया तो ये दोनों लेयर आप सेपरेट कर सकते हो. हाँ, जैसे एल्डिहाइड को अलग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो, ये सॉल्ट्स को. देन इसको फिर वापस लाना है सॉल्ट्स को, तो सिंपली आप कुछ बेस वगैरह डालो, बेस डालो तो ये H प्लस निकल जाएगा, हमें ये मीन मिल जाएगा वापस, क्योंकि ये सॉल्ट्स है. तो उसको बेस डालो तो ये इधर का जो H प्लस जो एक्स्ट्रा है उसको खींच लेगा वो बेस, और आपको ये मीन मिल जाएगा. So that's how you are separating. So that's what they are saying, that this is the meaning of that point. Are you able to hear me, Vidisha? Yes, sir. Okay. So this reaction is the basis for the separation of amines from the non-basic organic compounds. So like we have seen, I have shown you just now aldehydes, how you have separated from the amines compounds. Simply by add the acid, you can make it salts, and that will go into the water. So that water you can separate it, which is having the amine salts, and that you after you add the base again, you will get the amine. So that's how you can get the amine compounds insoluble in water. So this is all about that one. So what we will go to the now basicity. So all these things you go through that one. So this is also the same way as like we have seen the acidity case. जैसे हम लोग acidity का केस में देखा है, the same way you have to equilibrium constant. यो जो amine अगर पानी में डाला है, how much easily that can, how much strongly that can abstract the proton. Okay, how much easily, how much percentage of these salts are having. Okay, or this whatever the, what if it is the base, this is called the conjugate acid. This is called the conjugate acid. If it is the acid, this will be the conjugate base. All these things we have studied in the equilibrium chapter. So in the equilibrium what happens, equilibrium constant क्या है, product का ले लो और reactant का ले लो. So this is the equilibrium constant. So H2O is the constant. So water you bring this side, K equivalence H2O. Okay, that is the solvent that you bring, and you make one constant which is the Kb. In the acid case what we have seen, Ka. In base case what we are talking, Kb. Okay, so what is Kb? Kb, that is means that concentration of that power of that, giving the power of that particular organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए Kb वगैरह. सो आपको Pkb चाहिए, Pkb क्या रहेगा, -log Kb. मतलब ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा, ये वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा. सो लाइक दैट. अगर ये वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है. Pkb वैल्यूज अगर कम है, लेस वैल्यू वो क्या है, वो दैट इज लेस वैल्यू मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस.
ठीक है। पीके वैल्यूज लेस है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीके वैल्यूज लेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीके वैल्यू ज्यादा है तो क्या रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, बहुत ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा या वीक बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा या वीक, क्या है वो, पीके, ज्यादा, ज्यादा वैल्यू है, बेसिसिटी का हिसाब से बोलो। वीक एसिड। ओके एसिड, ठीक है। बेस को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम लोग पीएच का स्केल पता है, पीएच का स्केल पता है। सो क्या है, पीएच का स्केल का हिसाब से क्या है, 1 to 14 हमें पता है। लेस वैल्यू है तो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। मोर वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। द सेम वे पीके का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या रहेगा, पीके वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा, वीक बेसिक रहेगा। ऐश्वर्या क्या रहेगा, विदिशा व्हाट इट विल बी। So once again you tell, sir. ओके, what I am saying, because PK, not only PKB, PKB is clear for you now, जितना वैल्यू कम रहेगा उतना स्ट्रांग बेस है। पीकेबी पता है आपको, जितना वैल्यू कम रहेगा इतना एसिड है। नाउ कभी कभार एग्जाम में क्या पूछता है, एसिड बेस मिक्सचर दे देगा आपको और पीके वैल्यूज दे देगा। दे विल गिव यू द पीके वैल्यूज, जो वैल्यू अगर लेस है, सो लेस पीके वैल्यू क्या है, वो स्ट्रांग एसिड है, हमें पता है। ओके, मीडियम है तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल टाइप का वगैरह कुछ रहेगा, सो इसमें वीकर वगैरह रहेगा। अगर स्ट्रांग है, मीन्स हाई है, वैल्यूज हाई है पीके का, मैं पीके का बात कर रहा हूं, तो क्या रहेगा, बेसिक ज्यादा रहेगा या लेस रहेगा। Weak. हाउ इट विल बी विदिशा, बेसिसिटी पूछ रहा हूं मैं, बेसिसिटी विदिशा, हाउ इट विल बी, मोर बेसिक रहेगा या लेस बेसिक रहेगा। रोहिणी टाइप इन चैट मैसेज इफ यू आर अनेबल टू टॉक। स्ट्रांग बेस रहेगा रोहिणी, क्या है तुम्हारा आंसर। ऐश्वर्या इधर देखो, पीएच स्केल तो तुम्हें पता है। ओके, 1 2, 1 भी नहीं है, 0 to 7 14, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, 0 का मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। pH 14 मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ रहा है ऐश्वर्या मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, ऐसे भी अगर पीके वैल्यूज ले लो, फॉर एग्जांपल 0 to 14 ले लो पीके वैल्यू, तो ये क्या रहेगा, ऑब्वियसली अगर ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, पीके वैल्यू कम है, सो पीके वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रांग बेस रहेगा, बेसिसिटी विल इंक्रीज। इसका मतलब पीके वैल्यूज ज्यादा है तो बेसिसिटी विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऐश्वर्या। Yes, sir. इज इट क्लियर नाउ, इट्स नॉट वीक, स्ट्रॉन्ग बेस है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होने का, पीके ए पीके बी क्या वैल्यूज दे रहा है, एसिडिटी बेसिसिटी कुछ भी पूछ सकता है, इवन पीके वैल्यूज देके भी बेसिसिटी दे कैन आस्क यू। सो जितना वैल्यू कम है पीके का इतना वीकर बेस है, बट पीकेबी का दिया, इफ दे विल गिव यू द पीकेबी, जितना वैल्यू कम है इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक है, मतलब पीके ऑपोजिट टू पीकेबी, दैट्स इट। होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ सो दैट्स ऑल अबाउट दैट वन, हियर यू कैन सी, here you can see among these three, Aishwarya please unmute yourself, Aishwarya. So pkb values they have given, okay, so these three is given, okay, these three values I have given to you. Among these three, which one is the strong base, which one is the strong base. 4.22, sir. इधर पीकेबी वैल्यूज दिया है, इधर पीकेबी वैल्यूज दिया है। ओके, उसको गो थ्रू दैट वन, which one Vidisha, which one is the strong base among all these one. मिथाइलेमीन, डाइमिथाइलेमीन, ट्राइमिथाइलेमीन, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें। Dimethylamine. हाँ, ओके वेरी गुड, Dimethylamine, sir. हाँ रोहिणी वेरी गुड, 3.27। ऐश्वर्या डोंट गेट कंफ्यूज, मैं क्या बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, जिसका पीके वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका पीके ये वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अरे पीके भी पीके ये ऑपोजिट है यार,
पीकेबी इज पीकेए ऑपोजिट है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं मोबाइल से कनेक्ट किया। अभी ठीक है, अभी इतना आधा घंटा इसी में हो जाएगा, रहने दो। थैंक यू। समझ में आ रहा है ऐश्वर्या? हेलो, Yes, sir. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम? तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, पता नहीं चल रहा है Sir, यार मुझे। explain, sir. You watch the recorded video, Aishwarya. Okay, after the class you go through that one. Okay, all the PKB, ठीक है, उसको समझ लेना। इसी में हमारा टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। यार, आई एम ओपनिंग द पील ऑफ बनाना एंड आई एम पुटिंग इन योर माउथ, फिर भी कंफ्यूजन हो रहे हो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ ऐश्वर्या? पीकेबी वैल्यू कम है तो स्ट्रांग बेस है, ये समझ में आया तुम्हें? लेस Yes, वैल्यू sir. है, कम है वैल्यू, अगर कम है तो वो स्ट्रांग बेस है, ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो इसमें कौन सा वैल्यू कम है? किसका वैल्यू कम है? मिथाइलेमिन, डाई मिथाइलेमिन, ट्राई मिथाइलेमिन, किसका वैल्यू कम है इसमें? थ्री। Dimethylamine. हाँ, तो कम है, इसका मतलब क्या हो गया? ये स्ट्रांग बेस हुआ। अभी समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। इसका पीकेबी का ऑपोजिट रहता है पीकेए, ठीक है। पीकेबी का ऑपोजिट रहता है पीकेए। अगर वैल्यू ज्यादा है तब वो स्ट्रांग बेस रहेगा, ये समझ में आया? Yes, sir. और इसको तुम ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियोस ऐश्वर्या, यू हैव टू वॉच 2 to 3 times ऐश्वर्या, देन ओनली यू कैन सर्वाइव, आई एम सेइंग। बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज विथ सिंपली नहीं सोच रहे हो तुम, जो सिंपल चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हो, ठीक है। सो वेन एवर दैट्स द नथिंग रॉन्ग इन दैट वन। ओके, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच द वीडियोस, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ वाचिंग सम सीरियल, उस टाइम पे आप बैठ के ये वीडियोस देखो। ये सब सैक्रिफाइस कर लो आप लोग, कुछ सीरियल्स मूवीज वगैरह कुछ देखते हुए तो। एंड यू वॉच द वीडियोस, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हिंदी में भी आके बता रहा हूँ अभी। नाउ try to understand this one, because these concepts they give in examination, pk values देगा, pkb values देगा, and they will ask you to arrange the order, तो क्या करोगे? इसलिए ठीक है, whenever it is important you have to be take care of that one. pkb values of ammonia is 4.75, pkb value of ammonia is 4.75. so किधर है ammonia? इसमें दिया है कि ठीक है, ammonia is 4.75. try to understand here, aliphatic amines are aliphatic amines are stronger base than ammonia. Aliphatic amines are stronger base than ammonia due to plus I effect of alkyl groups, leading to high electron density on the nitrogen atom. So what is the meaning of here? See, NH3 is there. NH3 is here, right? So this is having lone pair of electrons. So here pKb values they have given is 4.75. इसके लिए ठीक है, 4.75 दिया। अभी क्या है? सो ये H को मैं अगर फॉर एग्जांपल एक CH3 के साथ रिप्लेस किया, एक CH3 मिथाइल ग्रुप के साथ मैंने रिप्लेस किया, सो व्हाट हैपेंस नाउ? ये CH3, द नेचर ऑफ CH3 इज डोनेटिंग नेचर, द नेचर ऑफ CH3 इज डोनेटिंग नेचर, दैट गिव्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नेचर ऑफ electrons, giving the electrons, donating nature hai. Oh, this is the very donating nature. The reason is that hyperconjugation that you have studied in the 11th class. So उसके लिए आप अगर चाहिए तो रिकलेक्ट कर सकते हो। सो ये डोनेटिंग का नेचर वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ये नाइट्रोजन, सो और सिंपली इजीली दे देगा। व्हाट इट विल डू नाउ, दैट विल गिव सिंपली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी एनी इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को आराम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। सो ड्यू टू दैट वन उसका पीकेबी वैल्यूज क्या हो जाएगा? पीकेबी वैल्यूज इसका कम रहेगा या ज्यादा रहेगा ऐश्वर्या? ये मिथाइल अमीन का पीकेबी वैल्यू कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा सर। ओके, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा रोहिणी पीकेबी? कम रहेगा सर। विदिशा क्या कैसे रहेगा? कम रहेगा सर। कम रहेगा ऐश्वर्या, तुम क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्ट्रांग बेस है उसका पीकेबी वैल्यू कम रहेगा,
ठीक है। अभी इसको मैं बोल रहा हूँ स्ट्रांग बेस है, क्यों? क्योंकि ये डोनेटिंग नेचर है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। बहुत सिंपल चीज से बता समझा रहा हूँ ऐश्वर्या, ठीक है? समझ लो। अगर नहीं समझ में आया तो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम, बैठो और वीडियोस वॉच करो, समझ में आ जाएगा पूरा मैं क्या बोल रहा हूँ। पीकेबी वैल्यू कम आई तो उसका वैल्यू कम रहे। सो व्हाट इज दिस वन? CH3NH2, CH3NH2। so CH3NH2 means what is the name of that compound? Methylamine. so this is the methylamine. कितने आ रहा है इसका वैल्यू? 3.38 है। एंड 4.75 इज व्हाट? फॉर द अमोनिया। अगर अल्काइल ग्रुप से अटैच करो तो पीकेबी वैल्यूज कम हो जाएगा। दैट मीन्स द स्ट्रॉन्ग बेस, when you put the alkyl groups, that the basicity is increasing. if you put withdrawing groups, the basicity will decrease, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। NH2 के साथ अगर मैं कुछ withdrawing groups डाला है तो वो क्या करेगा? वो खींचेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग का नेचर रहते इलेक्ट्रॉन्स खींचने का, विथड्रॉइंग ग्रुप नेचर का रहेगा। तो अभी क्या रहेगा? दिस इज टेकिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डोनेटिंग नेचर है इसमें। यूजुअली NH2 विथड्रॉ करता है, बट जब रिंग के साथ है रेजोनेंस का वजह से वो रिंग का अंदर दे देगा। दिस इज वेरी गुड डोनेटिंग ग्रुप लाइक OH NH2। दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका वजह से क्या हो जाएगा इसमें? बेसिसिटी कंपेयर्ड विथ अमोनिया, द बेसिसिटी विल इंक्रीज इट और डिक्रीज इट ऐश्वर्या। कंपेयर्ड विथ अमोनिया, विथड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया मैंने, बेसिसिटी इंक्रीज होगा कम होगा? ऐश्वर्या, आर यू एबल टू हियर मी ऐश्वर्या? ओके, शी इज लेफ्ट। यस। रोहिणी। Okay. So what we were discussing, if donating group is there, if donating group is there, CH3NH2, so NH3 का अमोनिया का हमने कितने देखा है वैल्यूज? अराउंड 4.7। इसका कितने देखा? अराउंड समथिंग 3.7 और समथिंग। सो दिस इज डिक्रीजिंग। अगर कुछ इसको NH3 को कुछ विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच किया, लाइक इन द केस ऑफ एनिलिन, एनिलिन फॉर एग्जाम्पल, तो इसका बेसिसिटी क्या रहेगा? बेसिसिटी विल इंक्रीज इट और डिक्रीजेस? विथड्रॉइंग ग्रुप बोल रहा हूं मैं इसका। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस वन। रोहिणी, व्हाट हैपेंस? बेसिसिटी विल डिक्रीज और इंक्रीजेस? रोहिणी। Increases, sir. विदिशा, विदिशा, Increases. बेसिसिटी, बेसिसिटी विल डिक्रीजेस, decreases or increases? what you are saying Vidisha? Increases, sir. basicity will increase। टाइप इन चैट मैसेज। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये विथड्रॉइंग है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर है, तो वो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को आराम से दे सकता है क्या? तो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे सकता है? नहीं दे सकता है कंपेयर्ड विद दिस वन। तो क्या रहेगा? बेसिसिटी विल इंक्रीज इट और डिक्रीजेस विदिशा? Decreases, sir. डिक्रीजेस यार। बेसिसिटी क्या होता है समझो, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स देना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजीली दे सकता है, वो ये बेसिसिटी है। जो आराम से दे सकता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो आराम से नहीं दे सकता है वो वीक बेस है। ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को आराम से नहीं दे सकता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी खींचने वाला है। ठीक है। अभी एनिलिन और नाइट्रो एनिलिन, एनिलिन एंड पैरा नाइट्रो एनिलिन, ये दोनों में किसका ज्यादा बेसिसिटी रहेगा? ये वन केस है, ये टू केस है। विच वन विल हैव द, विच वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस, वन और टू? ऑल ऑफ यू टाइप इन चैट मैसेज, आई वांट योर आंसर्स। One is the strong base or two is the strong base? रोहिणी, कौन सा स्ट्रांग बेस है, वन और टू? इतना देर क्यों लग रहा है मेरा भाई? हाँ, वेरी गुड। अभी समझ में आया आप लोग को, अभी समझ में आया।
तो क्यों? ये विथड्रॉइंग है। नाइट्रो क्या है? विथड्रॉइंग है और खींचेगा ये। सो विथड्रॉइंग ग्रुप्स रहता है तो क्या है? बेसिसिटी इंक्रीज होगा। सिंपल चीज। एसिडिटी कब इंक्रीज होगा? विथड्रॉइंग है तो एसिडिटी इंक्रीज होगा। सो ऑपोजिट है, हम तो बेसिसिटी का बात कर रहे हैं। अरे भाई विथड्रॉइंग है तो कम हो जाएगा। डोनेटिंग है तो क्या रहेगा? एसिडिटी। डोनेटिंग है तो एसिडिटी विल डिक्रीज बट बेसिसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि हम लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स का बारे में बात कर रहे हैं। तो पीकेबी वैल्यूज जो स्ट्रांग बेस है उसका कम रहेगा। सो इसका जो पीकेबी वैल्यू है इसको कम रहेगा। अगर पीकेबी का हम बात करेंगे ऐसे रहेगा। सो इफ आई टॉक अबाउट द पीकेबी वैल्यू, बिकॉज ये कम पीकेबी वैल्यूज है तो, बिकॉज इन एग्जामिनेशन पीके वैल्यूज दे विल गिव यू। So you should not get confused. You have to practice in this one. So this is all about the basicity. So if so this is just you go through that one and try to write all the structures and try to compare. So another one, let us see here, ethylamine. Ethylamine. So what is the structure of ethylamine? Ethylamine structure is CH3 CH2 NH2. ठीक है। Next, diethylamine. Next is diethylamine. So diethylamine means क्या है? Diethylamine. N का ऊपर दो इथाइल ग्रुप्स है, CH3 CH2 N CH3 CH2। इधर एक H है, ये डाई है, ये प्राइमरी है, ये ट्राइइथाइल। ट्राइइथाइलामीन मींस क्या है? CH3 CH2 3 ग्रुप्स है, CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप्स है। ये 1 2 3 में कौन सा स्ट्रांग बेस रहेगा? ऑल ऑफ यू टाइप इन चैट मैसेज क्विकली। 1 2 3 में कौन सा स्ट्रांग बेस रहेगा? डोंट लुक एट वैल्यूज, जस्ट टेल मी। व्हाट डू यू थिंक? 1 2 3 में कौन सा स्ट्रांग बेस रहेगा? टाइप करो अभी सब लोग, अभी टाइप करो। अगर पहले टाइप कर दिया तो क्या दिया मैंने? मिथाइलेमीन, डाइइथाइलेमीन, ट्राइइथाइलेमीन, अल्काइल ग्रुप्स मैंने नाइट्रोजन को ऊपर इंक्रीज किया। सो व्हाट हैपेंस? द बेसिसिटी ऑफ व्हिच वन विल हैव द स्ट्रांग बेस? ओके, रोहिणी इज सेइंग 2, ऐश्वर्या इज सेइंग 2। वैल्यूज देख के बताने के लिए नहीं बोला मैंने, एज ए जनरल बोला मैंने। विदिशा वैल्यूज को नहीं देखा, वो ऐसे बता दिया। क्या है वो? मैंने क्या दिया है सब लोग अंडरस्टैंड करो। तुम लोग वैल्यूज दे के बताया एक्चुअली। सो इधर अल्काइल ग्रुप है, CH2 CH3 NH2। okay, so another one, this is the first case. The second case is CH3 CH2 N और एक अल्काइल ग्रुप अटैच किया, CH3 CH2, इधर एक H है। सो 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच किया। और थर्ड केस में कैसे है? CH3 CH2 N CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3 CH2 CH3। सो इसमें विदिशा बोल रहे 3 और तुम लोग बोल रहे 2, क्योंकि आप लोग वैल्यूज दे के बताया, वैल्यूज दे के बताया। सो इस केस में ट्राई टू देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन के ऊपर अल्काइल ग्रुप्स पड़ रहा है। सो इट इज ऑब्वियसली दिस विल बी द मोर बेसिक। बट इस केस में एक ट्रिकी है, इस केस में एक ट्रिकी है। वो क्या है? इसमें एक्वेस केस में अलग रहते, एक्वेस केस में बेसिसिटी इज डिफरेंट, इन गैशियस स्पेस इट इज डिफरेंट। जब गैशियस फेज में है उसका बेसिसिटी नेचर अलग रहेगा, जब एक्वेस केस है तब इसका बेसिसिटी अलग रहेगा। ओके, जो भी वैल्यूज दिया वो एक्वेस केस में दिया हुआ है। गैशियस केस में इट इज द सेम, लाइक मोर अल्काइल ग्रुप है तो मोर इजीली वो दे सकता है। सो दैट्स हाउ इट इज। बट एक्वेस केस में क्या होता है? डिफरेंट फैक्टर्स विल कम। सो व्हाट आर दोस फैक्टर्स? solubility factor will come, solubility will factor come, one, and second one is steric factor। स्टीरिक फैक्टर कौन सा? स्टीरिक 1 2 3 में किसका स्टीरिक इंड्रेंस ज्यादा है? ऑल ऑफ यू टाइप। दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट।
So all these effects will come. Solubility will be there, steric factor will be there, inductive factor. So ये तीनों में steric factor का किस में ज्यादा है? Steric factor. Steric hindrance किस में ज्यादा है? 1 2 3 में? जल्दी जल्दी टाइप करो. स्टीरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है? हिंड्रेंस किस में ज्यादा लग रहा है आपको? सर मुझे लग रहा है इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है. आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली स्टीरिक हिंड्रेंस. ऐश्वर्य इज सेइंग 1. ओके. ऐश्वर्य आने और कैमरा. ऐश्वर्य तुम वीडियोस नहीं देख रहे हो. ऐश्वर्या अगर तुम वीडियोस नहीं देखेगा सो दैट विल बी द बिगेस्ट लॉस फॉर यू. तुम हर वीडियो क्लास देखना है मुझे, और देखने के बाद स्टार्टिंग से देखो. अल्काइल हाइलाइट्स से हर दिन एक एक वीडियो देखो और पोस्ट करो. सर आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो टुडे. सो डे 4 फॉर 5 ईच एंड एवरी चैप्टर. विदिशा एंड रोहिणी क्या हो रहा है तुम लोग को? क्यों आंसर नहीं दे रहे हो? विदिशा यार जो भी नंबर है बता दो यार. विदिशा इज सेइंग 3. रोहिणी इज सेइंग 3. नेटवर्क इश्यूज है तुम लोग का, इसलिए इतना देर लग रहा है इधर पहुंचने में. रोहिणी इज सेइंग. ऐश्वर्या तुम्हारा आंसर सबसे अलग अलग रहा है हर चीज में. क्यों? क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट्स भूल रहे हो. अगर भूल रहे हो सो नथिंग इज रॉन्ग इन दैट वन. मुझे हर क्लास का आप एक एक स्टार्ट करो. एक एक दिन एक एक वीडियो देखो स्टार्टिंग से. अल्काइल हैलाइड्स अल्काइल एरिन से स्टार्टिंग से एक एक वीडियो देखना है मुझे. देख के तुम रिपोर्ट करना है मुझे कि सर आई हैव वॉच्ड दिस क्लास वन डे सो दिस इज द डाउट आई एम हैविंग इन दिस वन. ये बताना है. ऐश्वर्या अनम्यूट योर सेल्फ. ऐश्वर्या हाँ. सो एवरी डे यू आर गोइंग टू रिपोर्ट टू मी पर्सनली ईच एंड एवरी वीडियो. स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब क्या है? ज्यादा बल्कियर है. हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया, बहुत सारा रिएक्शंस में हम लोग डिस्कस किया. बहुत बल्कियर, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जिसके पास है वो ज्यादा बल्कियर है, वो स्टीरिक हिंड्रेंस. हम लोग देखा है SN1 SN2 केस में. वाई SN2 is for the primary alkyl halides only. Why SN1 is for the tertiary? Why primary is not supported for the nucleophile command attack? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस है उसमें. अगर टर्शियरी ले लिया हम लोग CCl CH3 ओके CH3. अगर फॉर एग्जांपल इधर कुछ न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल Br है फॉर एग्जांपल, इसको न्यूक्लियोफाइल करना है. सो न्यूक्लियोफाइल जो भी है वो H- जो भी है इधर आके अटैच करने के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि ये बल्कियर है. स्पेस नहीं है, उसका वजह से पहले ब्रेक हो जाता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. इसका मतलब ये स्टीरिक हिंड्रेंस है कंपेयर्ड विद दिस वन. कंपेयर्ड विद दिस वन इज द मोर स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि हाइड्रोजन में स्मॉलर वंस है तो न्यूक्लियोफाइल आके इधर अटैक कर सकता है. इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द बोथ. सो हियर इधर एक ही अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के ऊपर. इधर कितने अल्काइल ग्रुप है? इधर 2 है. इधर 2 है. इधर कितने हैं? 3 है. 3 है, स्पेस ही नहीं है. तो क्या फर्क पड़ता है अगर स्टीरिक हिंड्रेंस का वजह से? अरे भाई ये प्रोटॉन्स को आना है, H+ को देना है. सो H+ आके इधर आने के लिए इधर स्पेस बहुत कम है. H+ रहने के लिए बहुत कम है. सो दिस कैन नॉट गिव इजीली इन द केस ऑफ सॉल्वेंट्स केस. बट इधर क्या है? बहुत सारा स्पेस है. H+ इधर से भी आ सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद. इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बहुत सारा जगह है. दिस इज ओनली द स्टीरिक हिंड्रेंस. सो ड्यू टू दैट वन व्हाट हैपेंस, इसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है बट इसके पास इतना भी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन 2 अल्काइल ग्रुप्स है, 2 अल्काइल ग्रुप्स है. और सॉल्युबिलिटी, सॉल्वेशन का भी इफेक्ट होता है. सॉल्वेशन मतलब क्या है? हाउ मच इजीली दैट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सॉल्वेशन में हाउ मच इजीली दैट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ये वाला इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म हो सकता है. सो गुड सॉल्युबिलिटी विल बी फॉर दिस वन.
उसके बाद इसको रहेगा। क्यों? इसके बाद इसको 2 अल्काइल ग्रुप्स है इसके पास। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिविटी चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, इतना नेगेटिविटी रहेगा। सॉल्युबिलिटी इसका मोर रहेगा, इसका कम रहेगा, इसका और भी कम रहेगा। सॉल्युबिलिटी अच्छा नहीं है तो रिएक्टिविटी जैसे प्रोटॉन्स का अब्स्ट्रैक्ट करना, वो दूसरे के साथ अटैच करना, ये सब डिफिकल्टीज रहेगा। इसका वजह से ये मीडियम में पड़ रहा है। ओके, सॉल्युबिलिटी में भी मीडियम पड़ रहा है, और अल्काइल ग्रुप्स दोनों, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप बट इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स है। सो सॉल्वेंट्स का केस में the order will be this one. Third will be second one will be the more basic, because three we have to consider: solubility, steric effect, and inductive effect. This one, second one, which is the secondary amine, will be the more basic, then first one, then tertiary one. Because of the H plus proton को इतना easily abstract नहीं कर पाएगा liquid में. This is in the case of what? Liquid state, aqueous state. कभी भी कुछ सॉल्वेंट में अगर हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं तभी। अगर गैस स्टेट का है, सो गैस स्टेट का है तो tertiary will be the more stronger, then secondary, then first one. Like triethylamine will be more, then this is in the gaseous state. This will be the in gaseous state. In liquid state, how it will be? Second will be more, then one, then three. ठीक है? Hope it is clear. Is it clear? All of you type in chat message. Okay, this is the questions, basicity related questions they will give in the examination. So you have to ask. You have to tell me. So whenever if you are having the doubt, you have to tell me. Okay. Okay. I will give you hmm, I will give you 3 different bases, and please tell me which one will be the strong base. NH2 order you लिख दो, order आप लिख दो, ठीक है? 1, 2, NO2. This one is the 3. Okay, इसको मैं 4. अभी इसमें ऑर्डर में लिख दो स्ट्रॉन्ग टू दी वीक, स्ट्रॉन्ग बेस टू दी वीक, स्ट्रॉन्ग बेस टू दी वीक बेस। ऑर्डर में लिख दो जल्दी जल्दी। स्ट्रॉन्ग बेस टू दी वीक बेस 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में लिख दो। ग्रेटर देन लेस देन का जरूरत नहीं है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ऊपर से नीचे। स्ट्रॉन्ग बेस टू दी वीक बेस, जल्दी जल्दी करो। आपको कौन सा लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, उसको 1 दे दो। अब सॉरी, जो फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग बेस है तो सेकंड लिख दो पहले। आपको लग रहा है उसके बाद फोर्थ रहेगा, उसके बाद 4 लग, ऐसे सीक्वेंस में लिख दो। मुझे 2 4 3 1 ऐसे लिख के भेज दो जल्दी जल्दी। हैव यू रिटन ऐश्वर्या? Writing, sir. हाँ। विदिशा, व्हाट अबाउट यू? रोहिणी, इतना दिन नहीं लगना चाहिए यार आप लोग को। So basicity is most important for the organic bases, because these bases we use in everyday, means in many chemical reactions. So that is the reason they ask frequently. That is the reason I am focusing. Whenever it is important thing, there I spend a lot of time. Almost 1 hour I have taken for this topic. And next class we will see chemical reactions, different chemical reactions. There is no need to spend much time, because all the reactions are you have studied already. That only will come. You don't read it separately. उसको हम लोग जैसे पहले किया है उसी को हम लोग पढ़ना है आप लोग को। विदिशा,
कैमरा ऑन करो, दिखाओ कैसे सीक्वेंस लिखा है, नहीं तो इफ यू आर अनेबल टू टाइप इन चैट मैसेज। रोहिणी, सबसे वर्स्ट क्लासेस मैंने लिया 12th क्लासेस का। बेस्ट प्रेजेंटेशंस आई हैव गिवन टू यू ओनली, best notes I am providing to you. I am spending a lot of time, but you are not maintaining good internet connections. That's it. इसलिए मुझे बहुत इरिटेशन लगता है आप लोग का, कुछ भी फेस टू फेस इंटरेक्शंस नहीं है। You will Vidisha is saying 4-3-1-2 4-3-1-2। ओके, सब लोग भेजो जल्दी जल्दी। 1324 रोहिणी। ऐश्वर्या जल्दी लिख दो। विदिशा 4213। वेरी गुड, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिला है सबका, एंड ऐश्वर्या हैज गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड ऐश्वर्या। आप लोग को क्या हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया क्या? तो क्या है रोहिणी, इतना देर समझाया फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो यार। वेरी गुड ऐश्वर्या। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी that this is the thing, if you learn slowly that can be remember much। अगर तुम फास्टली सीख रहे हो इसका मतलब है वो है जल्दी तुम भूल जाओगे। स्लोली लर्न करो, 10 बार लिखो, वीडियोस देखो, कुछ भी करो, बट दैट विल रिटेन इन दी लॉन्गर टाइम। वेरी गुड ऐश्वर्या, नाउ आई एम हैप्पी विद यू। सो ओके 4। सो नाउ वी नो एलिफैटिक एरोमेटिक में which one is the most strong bases? This one are the most strong bases, aliphatic, जिसका ऊपर alkyl group set आ जाए। ये 3 को बाद में देखेंगे। so first one you have to write 4। ये 1 किधर से आ रहा है रोहिणी? मैंने क्या बोला, फिनाइल रिंग है तो विथड्रा करता है, ये तो alkyl ग्रुप है जो कि डोनेटिंग ग्रुप है। नेक्स्ट वन, ये तीनों में कौन सा है देखना है आपको। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन इजीली दे सकता है, वही स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद कौन आराम से दे सकता है इजीली, ये 2 वाला दे सकता है क्योंकि ये डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं रिंग में, तो 3 है। सॉरी 2, 2 वाला है, 2-4-2, ये वाला डोनेटिंग है। और ये दोनों में ये तो विथड्रॉइंग है, ये तो सबसे लास्ट रहेगा। उसके बाद कौन है, ये 1 है, ये है 1 है बाद में, क्योंकि इससे भी कंपेयर किया तो ये और भी खींचेगा, तो 3 है। एक्सलेंट ऐश्वर्या। और दोनों के पास क्या हो गया पता नहीं, ये घंटे के क्लास लेने के बाद भी तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो, सो व्हाट वुड आई से। वेरी गुड ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ओनली हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिसिटी, सीक्वेंस ऑफ द बेसिसिटी। ठीक है, अभी इसका अगर पीकेबी वैल्यू लिखना है मुझे, ओके इसी का अगर पीकेबी वैल्यूज लिखना है, अगर पीकेबी का अगर सीक्वेंस पूछे एग्जाम में, इफ दे आस्क द सीक्वेंस ऑफ द पीकेबी, पीकेबी का कैसे रहेगा, किसका ज्यादा वैल्यू रहेगा, जिसका बेसिसिटी कम है, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। अगर पीकेबी वैल्यूज अगर लिखना है आपको, सो 3 विल बी द मोर देन 1 देन 2 देन 4। पीकेबी वैल्यू इसका ज्यादा है, पीकेबी मतलब क्या है, पीकेबी वैल्यू ज्यादा है मतलब लेस बेसिक है, लाइक दैट। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट वन। केबी वैल्यूज ज्यादा है तो क्या है वो स्ट्रांग, पीकेबी का बात कर रहे हैं हम लोग, पीकेबी। पीकेबी जितना कम है तो इतना स्ट्रांग बेस है, लाइक दैट। होप इट इज क्लियर नाउ। वो करेक्ट यू विदिशा एंड रोहिणी, तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गया लगता है मुझे। ठीक है, सो इट्स मे बी लिटिल बिट कंफ्यूजन, दैट्स फाइन, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट वन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड के बी क्या है, पे के बी क्या है, क्यों इसका वैल्यूज, इसका स्ट्रक्चर्स ड्रा कर दो आप लोग, प्रैक्टिस करो एंड यूपीएससी लिख दो। दैट्स हाउ ईच एंड एवरीथिंग यू कैन, यू विल बी टुगेदर, यू कैन लर्न। ऐसे नहीं डाइमेथाइलेमिन देख लिया, अच्छा ये वैल्यू 3 है इसका मतलब सबसे बेसिक है, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। लिख दो आप लोग, स्ट्रक्चर से लिख दो। अगर दिया एन में एन मेथाइल एनिलिन दिया है, इसका मतलब क्या है, एन मेथाइल एनिलिन मींस एन मेथाइल एनिलिन, सो एनिलिन लिख दो। एन मेथाइल एनिलिन दिया है, इधर मिथाइल एनिलिन नहीं दिया है, और दो मिथाइल लाइक दैट, तो आपको क्या करना है, इस मिथाइल लिख दो एन का ऊपर, और इधर क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, सो लाइक दिस। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एनिलिन, एनिलिन का स्ट्रक्चर लिख दो।
आपको सोचना है, अच्छा ये दोनों में कौन सा बेसिक रहेगा, अरे इसके पास मिथाइल ग्रुप है तो इसका पास ज्यादा बेसिक रहेगा। ज्यादा बेसिक मतलब क्या रहेगा, पीकेबी वैल्यू कम रहेगा। देखो एनिलीन का और एन मिथाइल एनिलीन का कम हो रहा है, लेस है बट कम है। दिस इज हाउ इट इज इट क्लियर ऐश्वर्या, बेसिसिटी कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Okay, so that's all about this one. Now, so this is what I have explained in the tertiary amine. Secondary amines, usually if it is in gaseous state, this will be like that in gaseous phase. Okay, this is all I have explained. But in aqueous solution, this order is not followed. Very, very important. Why? The reasons are this one. Steric effect, one, because crowding. Steric means crowding. किसमें ज्यादा crowding है? जो bulkier groups है, ये ज्यादा crowded है। ये इतना क्राउडेड नहीं है क्योंकि इधर स्मॉलर वन है। बहुत मैटर करता है ये रिएक्टिविटीज में, स्टीरिक इफेक्ट। सो स्टीरिक इफेक्ट देखेगा तो इफ यू सी स्टीरिक इफेक्ट लाइक दिस वन, ओके, क्राउडिंग। हेंस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल बी, अगर स्टीरिक का अगर आप दिमाग में रख के सोचेगा तो द बेसिसिटी विल बी मोर फॉर द प्राइमरी एमिन्स बेसिसिटी, बट स्टीरिक किसमें ज्यादा है, टर्शियरी में। नेक्स्ट हाइड्रेशन इफेक्ट, दिस इज आल्सो सॉल्युबिलिटी रिलेटेड, सॉल्वेशन किसमें इजीली सॉल्वेशन हो सकता है। सो प्राइमरी में इवन सॉल्वेशन आल्सो विल बी मोर इन द केस ऑफ प्राइमरी, दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। प्राइमरी में ज्यादा सॉल्वेशन है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाउ इजीली दैट कैन फॉर्म टू दी वाटर। सेकेंडरी में लेस है और टर्शियरी में और भी लेस है, टर्शियरी में क्योंकि सभी डोनेटिंग ज्यादा है तो ज्यादा पोलर नेचर नहीं है, सो इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल नॉट फॉर्म। Thus, according to this concept, order of basicity of amine should followed. ये सब दिमाग में रखिए, स्टीरिक hindrance effect, hydration effect, inductive factor, all if you keep in this one, this will be like more, like secondary will be more, then first degree, then tertiary. So you have to, if the basicity, if they ask in primary, secondary, tertiary, so this you have to keep in mind. It is different in gaseous state, it is different in the liquid state. Comparison of basic strength of aniline with alkyl amine. So this all we have discussed now, just now, that we will compare with the different one. Okay. Okay, that basicity related. This all you go through that one. This I have discussed already. Plus I group, for example, methyl group is there like that. This animation you see why it act as a this one withdrawing nature. This is also resonance. So that's how you can see negative charge किधर आ रहा है आपको. You are getting at the ortho and para portion. If you do the electrophilic substitution, that will goes at the ortho and para portion. Okay, let us see this one and try to watch, understand the how delocalization of lone pair of electron of nitrogen in the ring is taking place. Delocalization of lone pair of electrons of nitrogen on the ring. So how that will takes place. So this is how. Okay, you see animation at this one. This is how actually we have seen how it happens, how it is moving. Lone pair of electrons coming from the bond, and this bond will form the anion. Anion means two electrons, both is together, that is showing means that is only one only. और ये bond form में use हो रहा है, and this is how इसका negative charge बन जाएगा इस part का. Next क्या रहेगा, ये वाला bond बनेगा, ये वाला negative charge में बन जाएगा. Like that. This should be alternative. You can see. This is same case for the phenols also. जो भी donating groups है, this is how ortho para directing groups है, जो भी है यही reason है. Okay, like that will come. Okay, this is what the delocalization of the electron. Okay, and next, now what is the time now? Okay, 10:10. Now 5 minutes I will take and I will leave you. So what they are saying, comparison of basic strength of aniline with alkyl amines. With alkyl amines. Aniline is an aromatic amine. Its structure is shown below. This we know anyhow. Now what happens? This one, delocalization of lone pair of electron of nitrogen on the ring. Lone pair of electron on nitrogen atom are shared by the aromatic ring. This is evident from the following resonance structures. So that we have seen. Next,
Lower stability of anilinium ion. Here you can see positive charges coming on the nitrogen. Lower stability of anilinium ion. So what is the anilinium ion? So अगर कुछ positive charge जा रहा है, for example we have seen when aniline कुछ एसिड के साथ कर रहा है तो हमें HCl के साथ रिएक्ट किया फॉर एग्जांपल, तो क्या बन जाएगा इधर NH3 प्लस Cl माइनस. सो इसको एनिलीनियम आयन बोलते हैं, एनिलीनियम. Lower stability of aniline. Second main reason for the low basicity of aniline is the lower stability of anilinium ion formed by the protonation of aniline. Resonating structure for anilinium ion cannot be drawn due to absence of lone pair of electrons as shown below. So resonance structure of anilinium ion we cannot draw exactly. So basically what is happening here, it's not stable. So वो घूमता ही रहेगा. So lone pair of electron free नहीं है वो दूसरे को देने के लिए, इसलिए बेसिसिटी कम है, बहुत कम है कंपेयर्ड विद द अल्काइल में. Okay. So we cannot show the resonance effect of that one. Now we will see some point of this one, some points of this anilinium ion regarding. Thus, anilinium ion is unstable as compared to aniline, which is stabilized by resonating structures. The effect of substituents on the basic character of aniline. So what is meaning of that one? Substituents on ring affects the basicity of aniline. That we know. अगर प्लस आई ग्रुप्स है तो इसको क्या रहेगा, इसको इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत कम पड़ जाएगा अभी, क्योंकि देने वाला है अभी. Now what this will do, that will give the easily this H plus. Electron donating group increases the basicity of anilines as they increase the electron density and also stabilize anilinium ion, whereas decreases the basicity of aniline as they destabilize the anilinium ion. So this is same case. So how the basicity will increase in the case of जैसे aniline में अगर donating group है जैसे उसका basicity increase होता है, the same way it is. Okay, it's not that much really very important of the basicity of this anilinium ions. You don't worry much about this one. Just go through this one. If you understand, you can ask me. Okay. Next, effect of this one. अगर पैरा ग्रुप में है सेम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, मेटा ग्रुप में है तो पैरा ग्रुप वाला ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यूजुअली हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो किधर जाता है, आर्दो एंड पैरा, उसी का इफेक्ट ज्यादा रहते हैं, पैरा एंड आर्दो. और पैरा एंड मेटा. अगर पैरा और आर्दो है तो आर्दो का ज्यादा रहते हैं, पैरा का ज्यादा रहते, क्योंकि इधर स्टीरिक इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ फैक्टर रहते. ओके, सो पैरा विल बी मोर. सो नाइट्रो है, ये दोनों में जो पैरा वाला है वो मोर बेसिक है कंपेयर्ड विद दिस वन. ये दोनों का कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. एनी हाउ कंपेयर्ड विद द एनिलीन दिस विल हैव लेस, क्योंकि खींच रहे हैं वो, बट दोनों में नाइट्रो ग्रुप है, आर्दो और पैरा में है, तो कैसे रहेगा, जो पैरा है दैट इज द मोर बेसिक वन कंपेयर्ड विद दिस वन. ओके, सो दैट्स हाउ. नेक्स्ट वन, अल्काइल ग्रुप्स अगर ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा रहेगी. इधर एक अल्काइल ग्रुप कम है, H है अल्काइल ग्रुप का जगह में, इधर क्या है अल्काइल ग्रुप्स का जगह में दोनों, सो इसका वजह से बेसिसिटी इसका इज लेसर इन दिस केस. ओके, ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड. नाउ नेक्स्ट वन. Okay, this is all about the basicity related. All you go through that one and all of you write in notes and you go through the NCERT also, both. Whatever the NCERT is, that is only matter here. If something is extra is there, so many more examples will be there in NCERT, that also I have posted. So reactions with metal ions from here we will start in the at 11 o'clock. Okay, so that is all about this one. If you are having any doubts, you can ask me. Otherwise you can go. So we will meet at 11 o'clock. Okay. If you are having any doubt, you can ask me and you can ask the question. Otherwise, you can go and join at 11 o'clock.